echo of his call. Praise be to the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। Today the Lord is going to bless you in a special way. आज परमेश्वर आपको खास रीति से आशीर्वादित करने जा रहे हैं। Acts chapter 19 verse 11 says like this. प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय और 11 वचन इस तरह कहता है, God wrought special miracles through the hands of Paul. और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था। So God worked unusual miracles by the hands of Paul. यहाँ परमेश्वर पौलुस के द्वारा एक अनोखे काम, अद्भुत काम करते थे। Here we see a man, ordinary man like you and me. यहाँ हम देखते हैं एक साधारण मनुष्य हमारे और मेरे और आपके जैसे। The secret is the Lord Jesus Christ took him in his hands. रहस्य बात यह है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपने हाथों में लिया। He did so many miracles through that man. और परमेश्वर ने उस व्यक्ति के द्वारा बहुत सारे अद्भुत और आश्चर्य कर्म किए। Bible says बाइबल कहती है his handkerchiefs were placed on the sick people. उसके जो हैंडकरचीफ था वो लोगों, बीमार लोगों के ऊपर रखा गया। His aprons were placed on the sick people. और उनके कपड़ों को दुखी लोगों के ऊपर रखा गया। Also on the evil people's body. और जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे उनके ऊपर, Evil possessed people. और दुष्ट आत्मा से जुड़े हुए लोगों के साथ। Incidentally, immediately, the Lord God was able to heal them. और तुरंत प्रभु यीशु मसीह उनको चंगाई दी। Instantaneously, the sick people and the evil possessed people were delivered by the power of God. और एक ही क्षण में तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा की शक्ति से उनको बचाया। This happened when Apostle Paul was in this world. और जब प्रेरित पौलुस इस संसार में था तब ये बातें हुई। There is a secret in this. यहाँ पर एक रहस्य है। The Lord God is still seeking some people like Apostle Paul to do miracles. परमेश्वर आज भी पौलुस, प्रेरित पौलुस जैसे इस्तेमाल करने के लिए लोगों की खोज में है। As I told you, when the people placed the kerchiefs used by St. Paul, the sick people were healed. और जैसे मैंने पहले कहा वैसे जब प्रेरित पौलुस का जो हाथ रुमाल था वो बीमार लोगों के ऊपर रखा गया और वो चंगे हो गए। They were delivered from the evil forces. और वो दुष्ट आत्मा की शक्ति से भी छुड़ाए गए। That's because of the anointing of the Lord Jesus Christ. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक उस पर था। This morning, God is also in need of a person like you to be anointed by the Spirit of God. इस सुबह के समय में प्रभु यीशु मसीह आप जैसे लोगों की खोज में है ताकि वो अभिषेक। He wants to send you to the world to heal the people and cast away the evil spirits. और वो चाहते हैं कि आपको इस संसार में भेजे ताकि लोगों को दुष्ट आत्मा की शक्ति से बचा सके। People of various culture and language speaking people are suffering because of sickness and evil possession. इस संसार में कई तरह की संस्कृति में और भाषा बोलने वाले लोग शैतान की हर बंधनों में फंसे हैं। और The Lord Jesus Christ wants to give you a special anointing. और प्रभु यीशु मसीह आपको एक विशेष अभिषेक देना चाहते हैं। He wants to use you to deliver the people from various culture. और वो आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं कि हर संस्कृति में जो लोग हैं उनको बचा सके। Can you come forward, my dear sister, my brother, to take up this responsibility today? मेरे प्यारे भाई और बहन, क्या आप आगे आना चाहते हैं ये लेने के लिए? We are already some people in the front line. कुछ लोग पहले से ही आगे हैं। You can join us. और आप लोग उसमें जुड़ सकते Let us हैं। change the world upside down. और साथ मिलकर इस संसार को हम उथल Let पाथल us करेंगे। change the world upside down. और इस संसार को हम उथल पाथल कर Do not देंगे। hesitate. और कभी भी आप This घबराएं is नहीं। God's calling. ये परमेश्वर की बुलाहट है। He is going to do better things in your life. और वो आपके जीवन में विशेष काम करना चाहते हैं। You will cause you to perform great miracles in the name of the Lord Jesus Christ. और वो आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से महान अद्भुत काम करने के लिए सामर्थ्य By देंगे। that way you will be blessed. और इस तरह आप आशीर्वादित You will be a होंगे। blessing to others. और आप दूसरों के लिए आशीष का कारण Great होंगे। things will happen through you. और आपके द्वारा अद्भुत काम होंगे। I will pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना The करना Lord is चाहता हूँ। willing to do great things for you.
परमेश्वर आपके लिए महान काम करना चाहते Loving हैं। Father, we thank you for this wonderful time. कृपालु प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते You हैं। need great people in the mission field. प्रभु, इस संसार में सेवकाई में बहुत सारे लोग हैं। People of this world are dying and going to the eternal hell because of a Christless life. और इस संसार में कई लोग मसीही बिना मसीही का जो जीवन जीते हैं वो लोग नरक की ओर जा रहे हैं। We want to bring them to the love of the Lord Jesus Christ. प्रभु, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के प्यार में हम लाना चाहते हैं। Lord, we have spoken the truth to the people. प्रभु, हमने सच्चाई है, जो वचन की सच्चाई है Speak उनको to them बोली and है। bring them to the mission fold. प्रभु, लोगों के साथ बात करें और उन्हें भी सेवकाई में आगे Speak to बढ़ाइए them, Lord. और उनके साथ बात We करें। are able to see a lot of Apostle Paul through this prayer right now. प्रभु, इस प्रार्थना के द्वारा इसी वक्त प्रभु कई लोग प्रेरित पौलुस के समान हम देख In Jesus' सके। name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते आमीन, हैं। आमीन। आमीन। पौलुस की तरह दर्शन तेरा कर, दर्शित यीशु से मिलाऊं इस जग को। पौलुस की तरह दर्शन तेरा कर, दर्शित यीशु से मिलाऊं इस जग को। जीवन तेरे चरणों में प्रभु, जीना मरना तुझ में। जीवन तेरे चरणों में प्रभु, जीना मरना तुझ में। दर्शन दे दो प्रभु, तेरे दर्शन की मैं आतुर हूँ। आके दर्शन दे, आके दर्शन दे।